Hello, 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 hi, welcome to the India's largest learning platform, which is an academy. This is Neha Kumari, your SST educator. I welcome you all to the Unacademy channel, which is Unacademy 8. Let's crack CBSE 8, correct? So, today we will be discussing a second part of this topic, which is about the soil that is very, very important for us to understand. We have covered a part of land where we have seen that what are the factors that affected land, what were the how what methods we have to in order to conserve land, what are the threats to land, what is a landslide, how to mitigate it, correct. Apart from that, we have also seen that how landslide affects the land use. Okay, so today we will be discussing about the soil, then we will go to the water part. But before going any further, let me introduce myself. This is Neha Kumari. I have done my graduation, post graduation from Nehu University. I have done masters in commerce. Yes, I have a specialization in commerce, basically. But currently, I am pursuing B.Ed from IIMT University. I have 1 year of experience in teaching in KV school where I was teaching class 11th and 12th. The subjects that I was teaching there was accountancy and business studies. So as you can see, I was taking commerce subjects, but nonetheless, academy has given me an opportunity to explore, to disseminate the same information, the same information that I have regarding SST. Yes, I have subject SST in my school level, so yes, I know what is SST all about. Correct. I was a geography student when I was in class 11th and 12th. So, yes, I had geography as my fifth subject. So, yes. So, Unacademy is called as the India's largest learning platform because when you get the subscription, when you take the subscription, you get to access unlimited live and recorded courses from India's best educators. Come on. Yan Academy is a platform that is giving you India's top educators, India's best educators. So you are in good hands. You are in great hands actually. These educators, they take live classes. Okay, so you are learning for when you experience plus for free and start learning from the best. That is the motto where you are sorry, these live classes are free. They are not being charged at all. Okay, so yes, it is free. You get to learn from the best. You are here to prepare with the India's top educators. Unacademy provides you with the India's top educators who have experience like 20 years, 5 years, 6 years, 1 year, like that. So they know what they are teaching. These top educators, they are very, very, they have this specialization in these subjects, whatever they are taking. Then when you take plus sign, plus subscription, then you get India's best educators, interactive live classes. Yes, we take daily live classes, and where you have the option to chat with us, to interact with us. So that is definitely a good point for selection, for selecting an academy. Then we also provide live tests and quizzes where your daily tests and quizzes normally we take on a daily basis, so that whatever we have taught you has actually entered in your head and you are not feeling any kind of burden on your head. And बाद में you know that yes, we have done this, yes, we have done this, yes, ma'am was talking about this, yes, ma'am was doing like this. So इसका मतलब you are learning, right? आप live test and quizzes पे अपनी ये सारी capabilities और enhance कर पाते हैं. Then we also provide you a creative corner. This creative corner is basically giving you an opportunity to learn beyond school syllabus. You are learning above your school syllabus. Suppose you are in class 8, so math, science, English, Hindi, social studies are your main subjects. But apart from that, if you have certain interest in learning, in learning some more subjects like robotics, business administration, Indian literacy, so those subjects are also available on the plus, right? Then we also provide you an entertainers corner where you will be very happy to join, and you will be able to learn about magic tricks, filmmaking, music,
and drawing arts. So every kind of creativity is there. Paper craft, if even if anybody wants to learn paper craft, that is also available on the entertainers corner. Then we have orators corner, where debating, public speaking skills, effective communication skills are taken into account. Yes, you know you have the knowledge but you are unable to communicate, then that knowledge is like idle, right? You are not using that knowledge. So it's always good to be a good speaker, be a good communicator. So for that enhancement of your skill, orators corner is for you. Then we have book lovers corner also, where you are learning about blogging, mastering storytelling, and so many more. Book covers, book club are also there. Many a number of books you will see there, where of different things. So that is very a good point, right? So this blogging and all is going to help you if you have interest in writing about something. Then you know you how to write. That is also important, है ना? It's not like an essay. It is not an essay that we write in exam. This is something different. Blogging is the thing which is being followed by different people, right? They This is basically your opinion that you're writing. Suppose I am a food critic, then I am going to write about the books, about the books on sorry about the food in the books, correct? So then I should know about the food that I'm eating or I'm blogging about, or some restaurants. Then if you are joining this plus subscription, you are going to get daily life classes, where you will be able to chat with your educator, engage in discussions, ask your doubts and answer polls, all while the class is going. जब क्लास चल रही होगी तभी आप ये सारी चीजें कर सकते हो. मतलब इट इज सो एक्साइटिंग. लाइक अभी आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. यू आर सिटिंग ओवर योर इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप और यूजिंग योर फोन, एंड देन यू आर चैटिंग विथ योर एजुकेटर साइमल्टेनियसली. टीचर ने कुछ एजुकेटर ने कुछ सवाल करा, वो भी आपने फटाफट फटाफट जवाब दे दिया. सो वाओ, what else do we need? Then we also provide you a structured course. This structured course is covering all of your syllabus. ठीक है, ऐसा. और विद इन द टाइम फ्रेम द सिलेबस इज कवर्ड. Then practice sessions are there continuous basis पे. Then we also provide you some tricks and tips that you should learn, and how should you prepare yourself, so that your exams in your exams you get better marks, right? After that you get live tests and quizzes. About this I have already told, that evaluate your this basically this live tests and quizzes are actually helping you to evaluate your performance. ठीक है, कितना और पढ़ना है, कितना ठीक है चल जाएगा, या और थोड़ा अपने आप को पुश करने की जरूरत है, करेक्ट? Then last point that you have is unlimited access. Yes, you have one subscription, but you can use it whenever you want. लाइव क्लासेस, स्पेशल लाइव क्लासेस होती हैं, नॉर्मल क्लासेस होती हैं, उन सब पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलते ही रहेगा. मतलब आपको जब मर्जी हो तब आप करो. जैसे आपकी कुछ ऑनलाइन क्लासेस है, स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस है, तो यू कुड नॉट अटेंड दोज लाइव क्लासेस. Then what you can do, you can definitely access the recorded sessions in the app, correct? So this CBC class 8 plus subscription is starting from just rupees 800 per month. 800 में आप 5 subjects पढ़े हो. What else do you need? This is I was talking about. Comprehensive syllabus is there. That means your syllabus covers not only one subject but all the 5 subjects that you have in class 8. Apart from that, you're getting the plus benefits also, है ना? In comprehensive syllabus you will get your math, science, English, Hindi, social science, everything. One educator is not for one subject. We have multiple educators who are running their multiple batches also. So you are, whenever you are free, you can just go and have a look, correct? So for all these benefits, what do you have to do? You just have to download the Unacademy learning app on your mobile phone, on your laptop, and then install it. After that, you have to click on the step 3, which is CBC class 8th पे आपको click करना है. Then you have to click on the plus sign because you are availing plus benefits. Then you have to get the subscription. Okay, so this subscription is from class 6 to 12. Whatever I am pitching for. Okay, this is for class 6 to 12. The best plan that you have for class 6 to that we have for class 6 to 12 that you should go for is either 12 months or 24 months, because these two are prices are very economical. These are very cost effective. A per month cost is just now 1000 आसपास 1000 के, but not more than that.
and then that means you just have to pay 13,500 or 22,500, like that. Okay, but if you want to go for 36 months, you can go for that, no issues. Then your per month will be very very less. And see, when I say per month, that means the benefit that you get, like EMI, monthly installment, you can also pay using these kind of benefits, correct? तो इन पैकेजेस में आपको जो सही लगे 12 months एंड अबव, उस पे आप ईएमआई की अवेलेबिलिटी भी ले सकते हैं. इफ यू स्टिल थिंक दैट द कॉस्ट इज वेरी हाई, then what can you do? You can use my code, which is 10%, which will give you a 10% discount. This 10% discount you can avail by using my code, which is KUMERI. So that will be again lesser. अगर आपने ये 24 months वाला पैकेज लिया, देन आपका ये और भी 100 रुपए दो के आसपास कम हो जाएगा. तो भैया क्या क्या चीज की दिक्कत है ना? सो यूज माई कोड, गेट दी सब्सक्रिप्शन वेर यू विल बी गेटिंग अ 10% डिस्काउंट ऑफ. Then you pay for it and then good to go. Then yes, Telegram channel, you can also join us on the Telegram channel, Telegram app. This is our link where you can chat with us. You will be notified when the educator is taking the class, which topic she or he is going to talk about. Is there going to be mentees or live test quizzes? We also organize marathons of quizzes, right? So that gives you immense happiness. It gives immense happiness to us also, correct? So let's see, what do you have to study for today? Today the topic is about the soil. Here we are going to discuss the soil profile. What are the factors that leading to its threat, or how can we conserve soil? Why soil is very very important for us, correct? So we are going to learn about all this in today's class. So let's start the class. Soil is a thin layer of grainy substance covering the surface of the earth. So basically, when the school teacher is going to ask you, or the examiner is going to ask you that what do you understand by the term soil, you should say that it is a thin layer of grainy substance. Grains जैसे होते हैं, these are not powdery, these are grainy. That means इसमें छोटे 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 particles होते हैं that covers the surface of the earth, correct? Then आफ्टर दैट दीज आर वेरी वेरी क्लोजली लिंक्ड टू लैंड. लैंड के ऊपर ही सॉइल रहता है. लैंड एंड सॉइल यू कैन नॉट सेपरेट. अगर लैंड है तो सॉइल होगा ही होगा. देन आफ्टर दैट लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल. किस तरीके की लैंड फॉर्म है? इज इट वेरी प्लेन और हाई? इट्स अ माउंटेनियस लैंड और व्हाट काइंड ऑफ लैंड? जैसे आप बीचेस पे लैंड होगा तो उस पर सॉइल अलग होती है. अगर जब आप माउंटेन एरियाज पे जाते हैं तब वहाँ पे लैंड अलग होता है, वहाँ की सॉइल अलग होती है, लाइक दैट. ओके, देन it is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. So basically whatever, it's a combination. So you can say that it is a combination of organic matter, minerals एंड वेदर्ड रॉक्स. वेदर्ड रॉक्स का मतलब क्या है? जो रॉक्स टूट टूट कर बिकॉज ऑफ दी वेदर, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, उसकी वजह से जो रॉक्स की सिचुएशन होती है वो बदलती है ना. वी हैव इग्नियस, वी हैव मेटामॉर्फिक, वी हैव सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक्स. तो इनके वजह से द सॉइल हैज डिफरेंट प्रोफाइल, करेक्ट? सो लेट्स सी व्हाट इज द सॉइल प्रोफाइल. हाँ. So when I say weathering is basically means the breaking up and decay of exposed rocks by temperature changes, या frost action, या plants, या man. So anything can be the result for this kind of weathering. Weathering is basically, when I say weathered rocks, है ना, this weathered rocks, where is it? Where is my pointer? कहाँ चला जाता है भैया? These weathered rocks are basically due to the process of breaking, okay, BREAKING, breaking, and decay of exposed rocks. So जो rocks exposed है in out of the area, मतलब कि वो कहीं छुपा के नहीं है, वो पूरे लैंड पे है, वो दिख रहे हैं, वो टेम्परेचर की वजह से दे स्टार्ट weathering, they start decaying, they start breaking up. And as sometimes it can happen that temperature is one of the factor, ठीक है, जो पत्थर को पिघलाता है.
दूसरी तरफ ये है कि अगर कभी फ्रॉस्ट जम जाती है, जो अभी हमारे ठंड में बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से भी पत्थर जो है उनमें एक अलग सी नमी आ जाती है। देन वी हैव सीन दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड मैन दे आल्सो अगर मैन खुद ही पत्थर तोड़े तो उस वो भी एक अलग तरीके की सॉइल ही निकालती है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज द सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल होता कैसा है, या सॉइल में कितने लेयर्स होते हैं। सो द प्रोफाइल मीन्स द सॉइल लेयर, कितने तरीके के अपने पास लेयर होती हैं, ठीक है ना। LAYER। सो फर्स्ट वन, ओके, before going towards the soil profile, let me tell you that it takes minimum 100 years to take just 1 centimeter of soil. Centimeter is like this, itna chota sa. It takes 100 years to make 1 centimeter of soil. So that is why we should not exploit soil that much. That is why it is very very expensive. और सॉइल के बिना लेकिन घर वर कुछ बनता नहीं, इंडस्ट्रीज कुछ बनते नहीं है, तो सॉइल की भी डिमांड जब होती है ना, तो दे ऑल्सो आर वेरी वेरी कॉस्टली, ठीक है ना। बिकॉज इट टेक्स 100 years टू जस्ट मेक 1 centimeter। तो आप सोचो कि अगर मेरे को 1 ton चाहिए, है ना, तो मेरे को कितने ईयर्स वेट करने पड़ेंगे, है ना, या कितने सॉइल्स कितने रॉक्स को कन्वर्ट होने में टाइम लगेगा। सो सॉइल प्रोफाइल में वी विल सी दैट व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द सॉइल। सो फर्स्ट वन इज टॉप सॉइल विथ ह्यूमस एंड वेजिटेशन। सो एज जो हम देखते हैं ऑन द लैंड, जो वट एवर वी सी ऑन द टॉप लेयर, इट इज कॉल्ड द top soil that has humus, that has vegetation, that has vegetation minerals. So basically they do what? They are useful for growing crops, correct. Then this top soil is your first layer. Second layer is your subsoil, where sand, silt and clay. Today yesterday I asked you what are the types of soil, है ना, तो उसमें सैंड बताया था आपने, उसमें आपने सिल्ट बताया था, क्ले बताया था, ब्लैक सॉइल बताया था, रेड सॉइल बताया था। तो ये सब सॉइल होता क्या है? ये बेसिकली एक सॉइल ही है, लेकिन वो थोड़े से नीचे होते हैं एंड उसमें पत्थर होता है, कंकड़ होता है, क्ले होती है, करेक्ट। देन कम्स योर वेदर्ड रॉक मटेरियल। दिस वेदर्ड रॉक मटेरियल इज बेसिकली नीचे यहाँ पे और ज्यादा पत्थर होते हैं। अगर आप कभी अपना जमीन कोड़ के देखो, when you will till the land, then you will see that there are weathered rock materials as well. That means वहाँ पे आपको बहुत ज्यादा पत्थर भी मिलेंगे। Last comes your parent rock. Parent rock is very very deep. You have for getting that parent rock, you need to dig to the next level, है ना। So basically, what are the factors of soil formation? Before going towards the topic, let me wish you a very very happy Merry Christmas. Merry Christmas की बहुत बहुत बधाइयाँ हो सबको। So the surprise that you were asking for was that कि आज कोई लाइव क्लासेस नहीं है बच्चा, आज है हमारे पास रिकॉर्डेड क्लासेस। ये हम रिकॉर्ड करके आपको बता रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपके साथ चैट नहीं करेंगे। हाँ, हाँ, आपको ऐसे बात, आपके कुछ भी क्वेरीज होंगी तो मैं ऐसे बोल के नहीं बता पाएंगे, लेकिन येस आई विल बी अवेलेबल थ्रू चैट। मैं आपको चैट के थ्रू आपके क्वेश्चंस के जवाब जरूर दूंगी, ठीक है। एंड आई विल बी ऑल्सो एन एक्टिवली पार्टिसिपेशन, आई विल ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दी in for this class specially। मैं सारी classes के लिए होंगी, correct। So that was your Christmas surprise from Miss Neha Kumari। Sorry for the trouble। If you have any kind of queries, I will be answering it without any doubt। आप अगर सोचोगे कि मैम रिकॉर्डेड क्लासेस दे रही हैं, तो वो हमारे क्वेश्चंस कैसे रिजॉल्व करेंगे? बाबा, मैं आपके क्वेश्चंस भी रिजॉल्व करूंगी by talking over the chats। So yes, I will be available through chats, ठीक है ना। So what are the factors of soil formation? सबसे पहला फैक्टर क्या है? So the first factor that is affecting the soil to form is your parent rock, ठीक है, parent rock। So these parent rock का नेचर जिस तरीके का होता है, where is my this, yes, parent rock। So parent rock is one of the major factor that affects the soil formation।
इसमें वी सी दैट इट बेसिकली डिटरमाइंस पेरेंट रॉक होता क्या है, बेसिकली द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक इज टू डिटरमाइन कलर, किस तरीके का टेक्सचर होगा, क्या वो पतला होगा, मोटा होगा, लाइक दैट। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी उसमें, एंड मिनरल कंटेंट क्या होगा, परमिएबल है या नहीं है ना। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म परमिएबल? कुछ क्वेश्चंस भी हम आपकी तरफ पूछते हैं ना, वरना ये कम्युनिकेशन तो होगा ही नहीं, करेक्ट। तो परमिएबल का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हाँ, कोई बता दो। परमिएबल मीन्स, आपने कभी लाइक यू हैव सीन विंडो, राइट? विंडो इज परमिएबल दैट अलाउज लाइट, है ना। तो उस तरीके से ऑब्वियसली सॉइल अलाउज liquid and gases to come inside of itself, right? So that is the job of the parent rock. So parent rock basically helps in the permeability of the soil, correct. Second one we have is relief. No, sorry, before going to relief, let me explain this climate, because this is one of the other factor that helps in formation, in the formation of the soil. So we know that temperature, yeah, rainfall influence, yeah, rate of weathering and humus affects the सॉइल। जितना ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, जब बहुत ज़्यादा हीट है, टेम्परेचर इज़ टू हाई, देन दी रॉक, exposed rocks, they start decaying very very fast. So that is why rate of weathering and humus is very very important for the soil formation. Rainfall definitely influence the soil, है ना, किस तरीके की सॉइल होगी, that is also very very important. So that these things will cover in your climate section, correct. Then we will see that how relief. Now what is a relief? Relief is, relief is what? Can you explain what is a relief? It means that the altitude and the slope, कितने ऊपर से वो, जब ना पत्थर बहुत ज्यादा ऊपर होते, they are at a big that they are at a height, when they are at a height, when they start, because earthquake होते रहता है, तो वो पत्थर क्या है ना, वैसे करके ना गिरते हुए आते हैं, they slopes downward, right? So then they determine, obviously वो पिघलते वो टूट रहे हैं ना, they are breaking up. So when they are breaking up, they are going to accumulate accumulate at a certain place, and that actually determines कि वहां पे कितने soil मिलेंगे. So this is called relief. Next we have flora, fauna and microorganism. Flora, fauna and microorganism affects the rate of humus formation. Humus कितना होगा, कैसे बनेगा, वो affect करता है flora and fauna, यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे, अब क्योंकि जो उनके डेड पार्टिकल्स होते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक योर इंसेक्ट्स, जैसे अर्थवॉर्म्स, मशरूम्स वगैरह, ये सारी जो, मशरूम इज नॉट सॉरी इंसेक्ट, आई एम सेइंग इट्स फॉना, ठीक है। तो वो ना जब वो खत्म हो जाते हैं, दे गोज बैक टू द सॉइल, है ना, वो सॉइल में ही वापस चले जाते हैं, दे डिकेड अप। सो देन दे, दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ कि कितना ह्यूमस फॉर्म होगा, करेक्ट, सॉरी, यस। देन टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. It actually determines कि what will be the thickness of soil, कितनी मोटी होगी सॉइल की प्रोफाइल, है ना, वो क्या बहुत ज्यादा पतली होगी, बहुत ज्यादा ब्लैकिश होगी, या बहुत ज्यादा हल्की हल्की होगी, कैसी होगी, दैट इज बीइंग अफेक्टेड बाय द सॉइल फॉर्मेशन, है ना, नहीं सॉरी, दैट इज अफेक्टेड बाय द टाइम हमें डिटरमाइन करवाता है कि कितना कितना सॉइल प्रोफाइल का थिकनेस होगा, करेक्ट. सो वर्ड्स दैट एक्चुअली मैटर, है ना, सॉरी, दिस पी इज नॉट देयर, ये गलती से मेरे से हो गया है. वर्ड्स दैट मैटर में द फर्स्ट वन इज योर वेदरिंग. वेदरिंग का मतलब क्या होता है, द ब्रेकिंग अप, ओ यहाँ पे यू है, the breaking up and decay of exposed rocks by temperature changes, या frost action, या plants, या animals, या man. So basically weathering is a process that is resulting from the breakup and decay of exposed rocks. जब ना
एक्सपोज रॉक्स दे स्टार्ट डिकेइंग, दे स्टार्ट ब्रेकिंग अप. डिकेइंग यानी सड़ना, ठीक है. दे स्टार्ट वो सड़ने लगते हैं, वो खराब होने लगते हैं. देन वो खराब होते होते उनकी वो इतने हार्ड होते हैं ना, लेकिन वो छोटे छोटे पिघलते पिघलते एकदम ऐसे मरे से हो जाते हैं, ठीक है ना. एंड दे आर ऑल्सो बींग अफेक्टेड बाई द टेम्परेचर चेंजेस. टेम्परेचर के चेंज से भी वो अफेक्ट हो रहे हैं. जितना ज्यादा गर्मी है उतना ज्यादा, या बहुत ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा ह्यूमस है, तो वो और ज़्यादा वो एकदम छोटे से होते जाते हैं. देन एनिमल्स एंड मैन भी अफेक्ट करते हैं. कभी किसी को पत्थर से ऐसे लात मार दिया रॉक को, यू आर किकिंग द रॉक, समटाइम्स यू आर throwing it, sometimes you are breaking the rock. So this is called the process of weathering. Then yes, permeable क्या होता है? That allows liquid and gases to enter. Correct. Next, deforestation is cutting down of trees. क्या मुझे कोई ये बता सकता है कि ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस क्या होता है, बता सकता है? देन वी विल डिस्कस वन मोर क्वेश्चन, ठीक है ना. Humus is basically the organic component of soil formed by the decomposition of leaves and other plant material by soil or microorganisms. So humus is basically the dead particles of the plants or anything that goes back to the soil. कुछ भी चीज जो सॉइल में वापस चली जाती है, दैट इज बेसिकली द डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड प्लांट्स, ठीक है ना. सो दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, एंड दिस ह्यूमस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सॉइल, क्योंकि जो सॉइल में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ह्यूमस को बनाते हैं. करेक्ट. तो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन, आई वुड लाइक टू टेल यू, मैंने ये क्वेश्चन कल पूछा था कि व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ सॉइल. तो उसमें कुछ लोगों ने मुझे ब्लैक सॉइल बताया. देयर वर ब्लैक सॉइल, sorry, there was black soil, there was red soil, which was very very correct. We also have alluvial soil. It all depends ki where we are getting it, what is the landform. Correct. Then we also have laterite. Sorry, where is my pen? Yeah, laterite. We have laterite soil. Then we have mountain soil, desertic soil, mountain and desert. डेजर्ट में भी हमें कुछ सॉइल्स मिलते हैं ना, जो डेजर्ट में सॉइल मिलते हैं उनको हम कहते हैं डेजर्टिक. ब्लैक सॉइल वी गेट मेनली टूवर्ड्स महाराष्ट्र. रेड सॉइल हमें थोड़े से प्लेन एरियाज में भी मिलते हैं, लेटराइट लाइक दैट, माउंटेन्स एंड ऑल. यस, किसी ने मुझे माउंटेन सॉइल भी बताया था लास्ट टाइम. तो वो माउंटेन सॉइल आपको माउंटेन्स पे मिलते हैं बेसिकली, ठीक है. कभी कहीं आप जाओ ना, अगर आप ट्रैवलिंग में आपको इंटरेस्ट है, एंड तो आप देखोगे कि डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल, दे डोंट हैव सेम काइंड ऑफ सॉइल. अगर कहीं पे ब्लैक सॉइल मिल रहा है तो दूसरी तरफ एक रेड सॉइल है या लाल मिट्टी है ना. तो लेट दैट विल रिजल्ट इनटू व्हाई इफ वी आर गेटिंग अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स. अगर हमें वेराइटी ऑफ सॉइल्स मिलता है तो इसका मतलब वी नीड टू कंजर्व इट, वी नीड टू there is a need to conserve our soil. So what are the factors that is affecting the soil conservation? So number first point जो बहुत ही आसान है, that is called deforestation, cutting down of trees. The more you cut down trees, the soil will be very very hampered. The more you cut it, the less you will get it, right? The less soil you will get it. So see, if you're cutting down the trees, so that means trees has the retention power, ठीक है ना. उनकी जो roots होते हैं, they have the retention power. They retains minerals, they retain soil, they retains moisture in them. So that is why we should always try to plant trees. We should always try to plant what do we say, plant seedlings. Okay, seedlings, the correct word is seedling. हम लोग को seedlings plant करना चाहिए, हम लोग को saplings plant करना चाहिए. देखो मुझे अभी याद आया कि हमें saplings plant करना चाहिए. That is actually helping, that actually helps in conserving the soil conservation. So what if these factors, अगर मैं deforestation की जगह अगर उसे afforestation कर दूं, तो यानी वो बन जाएगा मेरा soil conservation का method.
करेक्ट. सो यू शुड सी कि ये जो फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं सॉइल कंजर्वेशन को, इनको बस इनके ऑपोजिट के साथ आपको बताना है, एंड दैट विल बी योर मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. करेक्ट. दैट इज अ वेरी इजी वे टू अंडरस्टैंड. देन ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आप इतने जगह में ही अपने कैटल्स को, अपने एनिमल्स को इतने जगह में ही ग्रेस के लिए भेज रहे हैं, उनको खाने के लिए भेज रहे हैं, एंड कल भी वहीं भेज रहे हैं, परसों भी वहीं भेज रहे हैं, तो ये एक टाइम पे आके ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा. तो इससे अच्छा क्या है, आपने एक दिन आपने इस जगह किया ग्रेजिंग, इस दिन इस जगह करवाया, एक दिन आपने इस जगह कराया, एक दिन आपने इस जगह कराया. तो इससे क्या हुआ, आपका लैंड भी सुरक्षित रहेगी, आपका सॉइल भी कंजर्व हो गया. करेक्ट. सो overgrazing is a cause that basically means, sorry. Overgrazing is a factor. Overgrazing मतलब क्या है, when you are using the same land for the grazing by the animals, है ना. आप अपने जो पालतू जानवर जो है उनको आप एक ही जगह पे ले जाकर सिर्फ वहीं की घास खिला रहे हैं, तब वो ऑब्वियसली आपकी सॉइल कंजर्वेशन की तरफ नहीं बढ़ाएगा, जबकि वो ओवरग्रेजिंग जाएगा, यानी इट विल बिकम एज वन ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्ट सॉइल. करेक्ट. नेक्स्ट वी हैव ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड. सो यस, केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स अगर आप ओवर यूज करते हैं, एक्सेस यूज करते हैं, देन द सॉइल क्वालिटी दे इरोड्स, इट गेट्स अफेक्टेड. ठीक है. ये आपके, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग एंड ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर योर ह्यूमन फैक्टर्स. ठीक है. these are your human factors that you can control. So these are basically your human factors that affects the soil fertility or soil conservation. The other three are your natural factors जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. रेन वॉश, जितना ज्यादा बारिश होगा उतना ज्यादा बालू चले जाते हैं, उतनी ज्यादा मिट्टी चली जाती है, उतने ज्यादा सॉइल अफेक्ट होता है. लैंडस्लाइड अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट कंट्रोल दैट लैंडस्लाइड. हमारे हाथ में नहीं है भैया उसको कंट्रोल करना, क्योंकि दैट इज अ नेचुरल कैलामिटी. करेक्ट. देन फ्लड्स. यस, जितना ज्यादा फ्लड होता है उतना ज्यादा मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, वो ठहरती नहीं है, एंड द क्वालिटी ऑफ द सॉइल. इसीलिए हम कहते हैं ना कि यू शुड नॉट गिव वाटर टू मच टू दी प्लांट्स, क्योंकि उससे ना सॉइल की जो नमी होती है या जो सॉइल की ह्यूमस होती है वो सब चले जाते हैं, सारी मिनरल्स पार हो जाते हैं, बिकॉज इट गेट्स वॉश्ड अवे, है ना. तो वी शुड ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि हम लोग को एक्सेसिव वाटर प्लांटेशन भी करनी नहीं चाहिए. वी शुड वाटर द प्लांट्स जितना उनको जरूरत है, थोड़ा 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 थोड़ा. ठीक है ना. So these were some of the factors जिसमें आपके रेन वॉश, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स आर योर फिजिकल फैक्टर्स जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. दिस विल बी कॉल्ड एज योर फिजिकल फैक्टर्स, एंड दीज अब द ऊपर के 3 पॉइंट विल बी कॉल्ड एज योर ह्यूमन फैक्टर्स जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है. So what are the methods of soil conservation? So people have started to think of certain methods of conserving the soil. They have actually tried so much in order to conserve the soil, because we know that all the natural resources are limited. So the ones one day or the other day they are going to get exploited, they are going to be not renewable, they will not get renewed. So it is our practice to in order to conserve them. So there is we should always use resources wisely, judiciously, in order to save it for future use as well. करेक्ट. मैं यहाँ पे जुडिशियस लिखने वाली थी लेकिन वो मेरा पेन इधर उधर इधर हो गया. तो यस, जुडिशियस, JUDICIOUS. करेक्ट. सो मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन में वी हैव नंबर 1 मल्चिंग. इट इज कॉल्ड मल्चिंग. मैंने मल्चिंग या जो मेथड्स बता रही हूँ, मैं जो यहाँ पे बता रही हूँ, मैंने उसके कुछ पिक्चर्स लगाए हैं ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में रहे, एंड यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज, यू कैन राइट इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज. ठीक है ना. सबसे पहला कि मल्चिंग होता क्या है. मल्चिंग इज बेसिकली डन ऑन द बेयर ग्राउंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ. आप लोग ने जब गांव वगैरह में हम क्या करते हैं, ये जो स्ट्रॉज होती है इनको ना एक और हिंदी में एक शब्द कहा जाता है जो मुझे भी याद नहीं आ रहा है,
इनको हम घास कहते हैं, बेसिकली आप एक घास कह सकते हो इनको, ठीक है ना। ये एक सूखी घास होती है जो पौधों के आसपास उसको ऐसे इस तरीके से स्प्रेड कर दिया जाता है, इस तरीके से स्प्रेड कर दिया जाता है, क्योंकि ना ये क्या करती है, जो घासें है ना, ये सॉइल को भागने नहीं देती है। जो सॉइल है वो इधर उधर जाती नहीं है, दे आर रिटेन इन एट अ पर्टिकुलर प्लेस, बिकॉज देखो, हाँ, आपको बालू हटाने या मिट्टी हटाने में उतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको ये सूखे घास हटाने में लगेगा, क्योंकि सूखे घास है, दे helps in retaining soil moisture. They capture soil का moisture. Soil में कुछ moistures होते हैं, कुछ minerals होते हैं जो हमारे ये straws they helps in capturing. Correct. Then उसके बाद हमारा second method है contour barriers. Contour barriers में what do we do? इट इज बेसिकली प्रैक्टिस ऑन हिली एरियाज। ये हिली एरियाज पे होता है जो ऐसे एकदम ऐसे स्टीपर हो। तो इससे क्या होता है, जब हम इसमें क्या करते हैं ना, ये एक ऐसे हिल है, तो इस हिल पे हमने डिफरेंट स्टेजेस बना दिए, ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस बना दिए। तो इस डिफरेंट स्टेजेस क्या करते हैं, दीज आर बेसिकली हेल्पिंग कि जो ऊपर से खिसक के जो मिट्टी है वो नीचे तरफ आए, तो वो वहां थोड़ी सी रुक जाए, फिर थोड़ी सी जाए, तो फिर नीचे रुक जाए, फिर ऐसे करके जाए। तो जब ना आप एक चीज देखो, अगर एक पूरी पूरी सिर्फ एक प्लेन स्लैंटिंग है, यू हैव अ प्लेन स्लैंट, देन एक बार में पूरा वॉश हो जाएगा। बट इफ यू हैव स्टेप्स तो वो कहीं ना कुछ मॉइस्चर रह ही जाता है, कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह ही जाता है। सो दिस वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस कॉन्टर बैरियर्स, ठीक है। So this was practiced where this was basically practiced in trenches that was made in front of it to collect water. So ये end आया, यहाँ पे इन्होंने एक गैप बनाया। This gap was basically to collect water. Excessive water, क्योंकि जब बारिश का मौसम था, होता था वहां पे, तो ना जो सारी जो पानी थी वो सारी एक साथ में सब चीजें बहा के ले जाती थी। तो ऐसे करने से थोड़ा पानी यहाँ पे कंट्रोल हो जाता था। ऐसे अगर हम बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे बना देते तो पानी का वो रुकाव जो है, वो जो फ्लो है, वो टूट जाता था, है ना। ऐसे वो धर 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 करके नहीं आते थे, वो एकदम स्लो स्लो करके फिर गिरते थे। तो दिस स्टोन्स एंड ग्रास सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलोंग कॉन्टर्स। तो हम लोग स्टोन्स, ग्रास, सॉइल जो हमें मिले, हम उसके थ्रू हम ये कॉन्टर बनाते हैं। एज यू कैन सी, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हमने स्टोन्स यूज करा है, ग्रास यूज किया है, देर आर सॉइल ऑल्सो टू, दैट इज बेसिकली अ बैरियर। एक डैम जैसा हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, बट नॉट कंप्लीटली अ डैम, इट्स लाइक बाउंड्री, एज यू कैन से बाउंड्री विल बी अ बेटर वर्ड। Then rock dam. We have also tried this rock dam where rocks are piled up to slow down the flow of water. यहाँ पे देखो, जैसे एक पार्क है, यहाँ पे इन्होंने ना ये सारे रॉक्स को लगा दिया, रॉक्स को एक अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज्ड वे से पाइल अप किया है इन ऑर्डर टू स्लो डाउन, नॉट स्टॉप बट एक्चुअली टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। जब ज्यादा जोर से बारिश आती है, तब ये सारे जो पानी है, ये सारे जो पत्थर हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, दे हेल्प्स इन कंट्रोलिंग दी वॉश ऑफ द वाटर। तो जब अगर ये वाटर वॉश को अगर ये रोक देते, तो इसका मतलब अल्टीमेटली सॉइल विल बी कंजर्व। जितना ज्यादा आप पानी का देखो, धीरे धीरे पानी चलने से ना ज्यादा सॉइल पे अफेक्ट नहीं पड़ता, पर अगर वो एक साथ भुश करके आएगी पानी, वो पानी अगर एकदम ऐसे फ्लो करके आएगी, तब वो ना ज्यादा मिट्टी ले जाएगी। तो ये रॉक डैम वाज एक्चुअली अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव, जहाँ पे उन्होंने रॉक्स को लगा दिया ताकि पूरा का पूरा पानी ऐसे जैसे इस नदी के पास से ऐसे बहर के ये ऊपर ना आ पाए, और अगर ऊपर आती भी है तो ज्यादा मिट्टी अपने साथ ले ना जाए, ठीक है। सो दिस वाज बेसिकली डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। सो देयर बिकॉज ऑफ दिस इंट्रोडक्शन ऑफ रॉक डैम, हमने गलीज या जो क्या कहते हैं, बड़े बड़े आप जो गैप्स नहीं देखते हैं कि कहीं कहीं बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, खड्डा हो गया, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए रॉक डैम बनाया गया था। सॉइल लॉस को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया था। इससे ना बहुत देखा गया है कि सॉइल लॉस वाज वेरी वेरी लेस, ठीक है। देन द नेक्स्ट वन इज योर टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग इज काइंड ऑफ योर कॉन्टर फार्मिंग ओनली, बट थोड़ा सा एक अलग सा ऐसा नाम हो जाता है बिकॉज यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट टेरेस बनाते हैं, ठीक है। तो टेरेस फार्मिंग इज मेड ऑन दी स्टीप स्लोप्स।
or so that flat surfaces are available to grow crops. वहां पे क्या था, कॉन्टर बैरियर में क्या था, हमने हमने वो कॉन्टर्स इसलिए बनाए थे, या हमने उस वो बैरियर्स इसलिए बनाए थे इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द पेस ऑफ वाटर एंड इन ऑर्डर टू गेट वाटर, है ना, पानी का वो बीच में मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे गैप बनाया था, एज यू कैन सी दैट दिस गैप वाज इन ऑर्डर टू कलेक्ट वाटर. बट टेरेस फार्मिंग में व्हाट डू वी डू, we are making steps, we are making terrace, place cut into stages in order to जितना मतलब एक स्टेज बनाया फिर इतना लेवल तक वो छोड़ देते थे, सपोज, हाँ, इतना लेवल तक छोड़ देते थे ताकि वो जो नीचे की जो गैप थी वहां पे वो ग्रो वहां पे वो क्रॉप्स ग्रो कर सकते. सो दीज फ्लैट सर्फेसेस एज यू कैन सी हियर, yes, as you can see here they were growing crops on these area and there was stages. आप देख सकते हो कि सिर्फ स्टेजेस बनाया हुआ है, यहाँ पे आपके क्रॉप्स ग्रो होते थे. तो क्या होता था, अगर वॉश ज्यादा जोर से बारिश आती थी या बहुत ज्यादा पानी का बहाव होता था तो कुछ ना कुछ मिनरल्स तो सबको ही मिलते हुए जाते थे ना, सारे मिनरल्स तो वॉश अवे नहीं हो सकते थे, बिकॉज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड दिस कॉन्टर फार्मिंग और टेरेस फार्मिंग इज इन ऑर्डर टू स्लो डाउन दी सरफेस रन ऑफ या सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का सबसे बढ़िया तरीका था. ठीक है. नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग में व्हाट डू वी प्लांट वी प्लांट टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स साइमल्टेनियसली मतलब एक जगह मैंने अगर लीफी वेजिटेबल ग्रो किया है, देन मैं दूसरे सेक्शन में कोरिएंडर लीव्स करती थी या पोटैटोज कर लेती थी, लाइक दैट. ठीक है. सो इंटरक्रॉपिंग इज बेसिकली it means that different crops are grown in alternate rows and are sown at different times to protect the soil from rainwash. तो इसका मतलब we are not using the same kind of crops in the whole area. जबकि हम यहाँ पे, क्योंकि ना इनमें से कुछ ऐसे क्रॉप्स थे जो सॉइल को रिटेन कर लेते थे, तो अगर जब ज्यादा जोर की बारिश आती थी या फ्लड आते थे तो दीज वेर हेल्पिंग द सॉइल टू कीप देयर मॉइस्चर, है ना. सो दिस वाज बेसिकली डन टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश. सो डू यू सी दैट हियर, यहाँ पे इन्होंने स्पिनच लगाया है एंड आई डोंट नो व्हाट दिस प्लांट इज. आई थिंक कोई कोई वही है, कोई पत्ता ही है, आई डोंट नो. ठीक है. आई एम नॉट श्योर एक्चुअली कि क्या है. और ये था जो इनके जो मेन क्रॉप्स होते थे ना, जो मेन क्रॉप्स होते थे उनको थोड़े एक अप साइड पे वो मतलब ऐसे ऐसे करके बॉक्स बना देते थे, थोड़ी सी ऊंचाई पर बनाते थे बेसिकली. हाँ, रुको, लेट मी शो यू. थोड़ी सी ऐसे करके ऊंचाई पे बना देते थे और फिर उसके साइड साइड में एक दूसरी क्रॉप लगा देते थे. दिस वाज कॉल्ड एज इंटरक्रॉपिंग. ठीक है ना. व्हेन यू आर ग्रोइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, नॉट सिंगल सेम टाइप ऑफ क्रॉप्स. Then we had another method of conserving soil, which was contour plowing. Contour barrier and contour plowing are different. ठीक है. क्योंकि contour barrier में we have seen that the method was done in order to uh, conserve water, in order to harvest water or to collect water. But contour plowing is basically a plowing that is parallel to the contours of a hill slope to form a natural barrier for water to flow down the slope. So basically we are making a kind of ऐसे करके ना हम पैटर्न बनाते थे, जिससे क्या है ये जो ऐसे सांप जैसे पैटर्न कहीं कहीं हम ऐसे ऐसे बनाते थे ताकि जो जब पानी आए तो वो भी ऐसे ऐसे, क्योंकि पानी की कोई शेप नहीं है ना. पानी को आप जैसा मोड़ोगे वैसे वो मुड़ जाती है. तो इसीलिए वी ट्राई टू इन कॉन्टर फ्लाविंग व्हाट वी हैव कॉन्टर प्लाविंग, सॉरी नॉट फ्लाविंग, कॉन्टर प्लाविंग में व्हाट वी हैव एक्चुअली डन दैट we have plowed according to the parallels of the contours of a hill slope in order to form a natural barrier. तो यहाँ पे ये बेसिकली इट इज डन एज अ नेचुरल बैरियर. यहाँ पे हम कुछ बैरियर लगा नहीं रहे, जैसे हम ना ही रॉक से किसी को रोक रहे हैं या ज्यादा ट्रीज नहीं लगा रहे. वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पैटर्न. देख सकते हो आप. हाँ, जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे दिखाया है कि यहाँ पे ये प्लांटेशन हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये बाकी के जो सॉइल्स हैं दीज आर बीइंग
कवर्ड अप, है ना? तो जब ज़्यादा पानी आएगा तो इसका मतलब ये जो बह के, ये पानी बह के कहीं पूरा पार ये सारे सॉइल को लेके नहीं जा सकता, बिकॉज़ बीच में मैंने प्लांटेशन भी करी है ना? सो दैट वाज़ अ बिग पॉइंट फॉर कंज़र्विंग द सॉइल। नेक्स्ट वी हैव शेल्टर बेल्ट्स। ठीक है, ये पॉइंट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ गोइंग टू कम फॉर योर 1 मार्क क्वेश्चन इन योर एग्ज़ाम फॉर श्योर। शेल्टर बेल्ट्स आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स, ठीक है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राई रीजन था या बहुत ज़्यादा धूप आती थी, तो उसके लिए हम क्या करते थे, रोज़ ऑफ ट्रीज़, हम ट्रीज़ के एकदम रो लगा देते थे। दे वर बीइंग प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पानी या फ्लड या लैंडस्लाइड यही सिर्फ सॉइल को ले जाती थी अपने साथ। कभी-कभी क्या थी, बहुत ज़्यादा हवा जब चलती है ना, बहुत तेज़ हवा चलती है, तो वो भी सॉइल तो टॉप मोस्ट लेयर ही तो हमारे लिए ह्यूमस और उसमें वेजिटेशन होता है, वेजिटेशन हम ग्रो कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें सिर्फ उस टॉप लेयर को तो बचाना है, बाकी नीचे तो पेरेंट रॉक हो या वेदर्ड रॉक मटेरियल हो, ये लोग सब तो खुद को प्रोटेक्ट कर ही लेते हैं। मतलब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं तो वो सारी चीज़ें तो बहा के नहीं ले जाते हैं, पर जो टॉप मोस्ट लेयर जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ही वो हवा क्या करती थी, अपने साथ हवा में उड़ा के लेके जाती थी। तो उस चीज़ में हम लोग क्या करते थे, बेसिकली अंडर दिस शेल्टर बेल्ट रोज़ ऑफ रोज़ ऑफ ट्रीज़ वर प्लांटेड टू इन ऑर्डर टू चेक कि विंड का मूवमेंट कैसा है, ठीक है? अगर विंड ज़्यादा तेज़ होती थी तो फिर भी जितना वो बहा के ले जाना चाहती थी, बट बिकॉज़ वी हैव प्लांटेड लॉन्ग लॉन्ग ट्रीज़, बिग ट्रीज़, तो उसमें थोड़े से वो फँस के रह जाते थे। तो ये क्या करते थे, बेसिकली दे वर प्लेइंग एज़ अ बैरियर। और फिर बड़े-बड़े ट्रीज़ हमने लगा दिए, बीच में हम क्रॉप प्रोडक्शन करते थे। ठीक है ना? यहाँ पे हम क्रॉप प्रोटेक्शन करते थे, तो इसका मतलब कि हमारी सॉइल कंज़र्व हो जाती थी। करेक्ट? सो इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, दैट वाज़ the end of my slide. So please keep in mind that we have 6 to 7 types of methods that we can use for conserving the soil. There are factors that affects the soil, and we should also know that there are certain methods. So we have shelter belts, we have contour plowing, we have contour barrier, we have सो मेनी। करेक्ट? सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कम से कम इनके आप डेफिनेशंस एंड वेयर दे आर प्रैक्टिस, ये आप याद कर लो। डेफिनेशन इज वेरी वेरी मस्ट, पॉइंट्स याद कर लो, बस सॉर्टेड। ये आंसर आपका जरूर आएगा, दैट इज गोइंग टू कम फॉर एटलीस्ट 5 to 6 marks। ठीक है? एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियो, प्लीज हिट अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब Unacademy app. And while subscribing the Unacademy app, you can use my code, which is KUMARI. You can also unlock free classes from my code that will give you an extra benefit. You can also join us on the Telegram app. That's all from my side. This is Neha Kumari signing off. Bye bye. Take care. Merry Christmas.